हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड आरसीसी पार्ट 2 है ये। ठीक है, पहले 100 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, सेकंड 100 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द इंटरनल डायमीटर ऑफ ए वेयर हाउस आर 15 मीटर एंड 5.6 meter and the maximum height of a pile is 2.70. The maximum number of bags to be stored in two piles is कितना होगा? 3000 bags. Next question है, pick up the incorrect statement from the following. The incorrect statement will be concrete ingredients should be kept at a temperature of 27 plus minus of 2 हो जाएगी, 37 है. Next question है, in a spherical dome the hoop stress due to a concentrated load at crown is टेंजाइल एवरीवेल. ठीक है, लोड के कारण क्या होगा? कंप्रेस होगा, लेकिन ये टेंजाइल होगा. ठीक है, तो इट विल बी टेंजाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, IS शिप नंबर 10 and 4.7 आर जनरली यूज फॉर द ग्रेडिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स एंड फाइन एग्रीगेट्स. दैट इज इट इज यूज्ड फॉर द ग्रेडिंग ऑफ बोथ A and B, दैट इज कोर्स एग्रीगेट्स एज वेल एज फाइन एग्रीगेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the process of mixing, transportation, placing and compacting concrete using ordinary Portland cement should not take more than initial setting time, that is 30 minutes. Next question है, the strength of concrete after 1 year as compared to 28 days strength is about कितना होना चाहिए? 22. It will be around 20% to 25% more. Next question है, if the permissible stress in steel in tension is 140 MPa, then the depth of the neutral axis for a singly reinforced rectangular balance section will be, what will be the depth? It will be 0.40 times of D. Next question है, a construction joint is provided where bending moment is small, shear force small, the member is supported by another member and all the above. So the answer will be all the above. Next question है, sand generally contains salt if it is obtained from the seabeds. Next question है, according to IS 456 1978 minimum slenderness ratio for a short column will be always, for a short column it is always less than 12. ठीक है, short column के लिए हमेशा less than 12 होगा. Next question है, water cement ratio is the वॉल्यूम ऑफ वाटर टू डेट ऑफ सीमेंट या वेट ऑफ वाटर टू डेट. देखिए, वाटर सीमेंट रेशियो जो है, दो टाइप ऑफ बैचिंग होता है हम लोग की, वे बैचिंग एज वेल एज वॉल्यूम बैचिंग. सो इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड टू डेट ऑफ सीमेंट एज वेल एज वेट ऑफ वाटर टू डेट ऑफ सीमेंट, बोथ A and B. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए कंक्रीट मिक्स 1:3:6 and water cement ratio of 0.6 both by weight, the quantity of water required per bag is, how much will be the water required? It will be around 14 kg. Next question है, what will be the L value? The L will be equal to L by 7. Next है, pick up the incorrect statement from the following. Bulk density is in a single size brick, bulk density is in a properly graded, bulk density is more in a single size, bulk density is in the properly graded, bulk density is more. तो इनमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. तो इन ए सिंगल साइज बल्क डेंसिटी इज मैक्सिमम. लीस्ट तो हो सकता है क्योंकि एक ही साइज की है, लेकिन मैक्सिमम नहीं हो सकता. द इनकरेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रिवेंट द सेग्रीगेशन द मैक्सिमम हाइट फॉर प्लेसिंग कंक्रीट इज, हाउ मच विल बी द हाइट? द हाइट विल बी 150 सेंटीमीटर फॉर सेग्रीगेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, for a simply supported beam of span 15 meter, the minimum effective depth to satisfy the vertical deflection limit should be, it will be always more than 1 meter. That value will be always more. Next question, for compacting plain concrete road surface of thickness less than 20 centimeter, we will be using, रोड सरफेस का कॉम्पैक्ट करने के लिए यूज किया जाएगा स्क्रीड वाइब्रेटर, जो कि एक लंबा तरीके का वाइब्रेटर है. ठीक है, आप जब आप स्क्रीड वाइब्रेटर को कभी कभी गौर कर लीजिए, जब क्या होता है कि रिजिड पेवमेंट बनाया जाता है, उस समय हम लोग स्क्रीड वाइब्रेटर को यूज़ करते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ द कंक्रीट स्ट्रक्चर एक्सीड्स
45 मीटर। नेक्स्ट है the permissible diagonal tensile stress in reinforced brickwork is about 0.1 megapascal. The critical section for finding maximum bending moment for footing under masonry load is halfway between the middle and the edge of the wall. Sinking of an intermediate support of a continuous beam, option will be option number B, that is it reduces the negative moment at the support and it increases the positive moment at the center of the span. Next question है high temperature decreases the strength of concrete. Next question है horizontal construction joint in concrete walls are generally provided at soffit level, window level, floor, all of the above. Horizontal construction joints are provided at all of the above. Next question है stress strain curve of high tensile steel is, सारा चीजें ये देखिए, बाकी आप लोगों को पता है 0.2 टाइम्स ऑफ प्रूफ स्ट्रेस है, तो बिना देखिए आपको टिक मारना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार इन ए कॉलम इज 12 mm यूज करते मिनिमम। द हाई स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एट अर्ली स्ट्रेंथ इज ड्यू टू एज, किसके कारण होता है हाई स्ट्रेंथ? देखिए बहुत बुक्स में आप लोगों को फाइन ग्राइंडिंग मिलेगा, लेकिन द हाई स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एट अर्ली स्ट्रेंथ इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड लाइम कंटेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैंड रिक्वायरिंग ए हाई वाटर सीमेंट रेशियो बिलोंग्स टू, वाटर सीमेंट रेशियो जिसको ज़्यादा चाहिए दैट सीमेंट बिलोंग्स टू जोन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन आरसीसी, मिनिमम ग्रेड इज M15 एज पर 1978 और एज पर 2000 इट इज M20। नेक्स्ट क्वेश्चन है while compacting the concrete by mechanical vibrator the slam should not exceed 5 cm. Next question, for a cantilever of effective depth of 0.5 meter the maximum span to satisfy vertical deflection is L by D should be greater than should be equal to 7 होगा, तो 7 into 0.5 करेंगे तो 3.5 आएगा, तो आंसर विल बी 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है the bulk density of aggregate does not depend upon the shape and size of the container, के ऊपर कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है a high modular ratio it will show the lower compressive strength of concrete। क्यों? modular ratio जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट, तो कंक्रीट का रेशियो जो इसके साथ रिवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। ये अगर हाई होगी मॉडुलर रेशियो तो कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है, क्योंकि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू द 5000 रूट ओवर FC के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ है, तो ये कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीमेंट कंक्रीट फ्लोर द मैक्सिमम परमिसेबल साइज ऑफ एग्रीगेट इज 10 mm। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉप रीइंफोर्समेंट्स इन द हील ऑफ ए टी शेपेड RCC रिटेनिंग वॉल इज प्रोवाइडेड एट द टॉप फेस perpendicular to, it is provided at the top face perpendicular to the wall। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मली प्री स्ट्रेसिंग वार्ड्स आर अरेंज्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द बीम। जितने भी प्री स्ट्रेसिंग वार्ड्स है ये बीम के नीचे पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि प्री स्ट्रेसिंग जब किया जाता है ना, तो उसके बाद ये अगर न्यूट्रल एक्सिस है तो हम लोग वायर्स को इस तरीके से प्लेस करते हैं, ठीक है। सो इट इज फाउंड एट द लोअर पार्ट ऑफ द बीम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइजन्स रेशियो फॉर कंक्रीट। पॉइजन्स रेशियो क्या होगा? इट इंक्रीजेस विद द रिचर मिक्सेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द शटरिंग ऑफ ए हॉल मेजर्स 4 मीटर बाई 5 मीटर, इट कैन बी रिमूव्ड आफ्टर, शटरिंग कब रिमूव कर सकते हैं? इट कैन बी रिमूव्ड आफ्टर 7 days। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रेशियो बिटवीन डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज हाफ 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज सेड टू बी फ्लैकी व्हेन इट इज 0.6 मींस इट इज 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनर्ट मटेरियल ऑफ ए सीमेंट कंक्रीट मिक्स, इनर्ट मटेरियल जो है वो उनको एग्रीगेट्स कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, वन इज द लाइम एंड सेकंड वन इज द जिप्सम। द परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट्स इन केस ऑफ स्लैब 1 HY the bars are used, when HY the bars are used it is 0.12, when mild steel is used it is 0.15। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशन ऑफ पजरोना टू सीमेंट
increases strength, decreases or increases the heat of hydration, none of this, none of this. उसके बाद next question है for 50 kg of fine aggregate and 100 kg of coarse aggregate, the water cement ratio is for 0.6 is 12 kg. Next is minimum cover to be to the ties or spiral should not be less than. minimum cover provide करेंगे spiral ties के लिए, lateral ties के लिए columns में, जो कि 25 mm. उसके बाद नेक्स्ट है sand of zone 1R, जोन देखिए जोन 4, F for 4 and F for finer. अब जोन 1 का मतलब है दे आर कोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वाइटनी थियरी इट इज 0.003. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन नॉट एप्लीकेबल टू वाटर सीमेंट रेशियो इज. कौन सा कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है? हाँ बिल्कुल, the concrete specimens can be tested at any temperature, need to be of same age, concrete specimen need be of same size. Not applicable is concrete specimen may be tested at any temperature. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है this lump of a concrete mix is its workability is medium. नेक्स्ट क्वेश्चन है pre and post. For the pre it is 42 and for the post it is 35. कैसे याद रखना है? देखिए pre में कितना शब्द है? 3 का मतलब 4 हो जाएगा और 4 का मतलब 3 हो जाएगा, तो 42 and 35. नेक्स्ट क्वेश्चन है the compressive strength of 100 mm cube as compared to 150 mm cube is always more. जितना छोटा होगा उतना स्ट्रेंथ ज्यादा दिखाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ ए वाइकेट्स प्लंगर is 10 mm and its length is 40 to 50 mm. ठीक है. उसके बाद द सीमेंट becomes useless if it absorbs moisture content exceeds, it will be 5%. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन reinforced concrete footing on soil. देखिए कंक्रीट फुटिंग जो है दो चीजों में प्लेस किया जा सकता है. एक तो है सॉइल में और एक है आपका पाइल के ऊपर. तो थिकनेस ऑफ द एजेस जो है सॉइल में 150 हो जाएगी, और अगर वही चीज फुटिंग जो है सॉइल की जगह पाइल में हो जाए तो वो 300 हो जाएगा, डबल. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है IS 456 के हिसाब से यील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 0.87 टाइम्स ऑफ FY. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग द कंक्रीट बाय कीपिंग इट्स सरफेस मॉइस्ट इज कॉल्ड एज क्यूरिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिटेनिंग स्ट्रक्चर द टाइप ऑफ कंक्रीट मिक्स टू बी यूज्ड इज. रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए हम लोग यूज करेंगे कंक्रीट. कौन सी कंक्रीट यूज करेंगे? विल यूज M20, मतलब 1:1.5:3. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन reinforcement in the toe of a T-shaped RCC retaining wall is in the toe is top face parallel to the wall, top face perpendicular to the wall, bottom face parallel to the wall and bottom face perpendicular. It will be present at the bottom face which is perpendicular to the wall. So answer will be option number D. Next question है a continuous beam is deemed to be deep beam when the ratio of effective span to overall the L/D is less than 2.5 हो जाएगी इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन if the fineness modulus of sand is 2.5 it is graded as 2 to 2.5, 2.5 to 3 and 3 to 3.5. it will be regarded as very fine sand. नहीं, फाइन सैंड, मीडियम सैंड एंड कोर्स सैंड. तो फाइन सैंड कहा जाएगा क्योंकि वेरी फाइन सैंड है ही नहीं. फाइन सैंड, मीडियम सैंड एंड कोर्स सैंड. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर नीडेड फॉर 50 kg इज फॉर M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज कितना लीटर हो जाएगी? इट विल बी 32 लीटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंक्रीट इज अनसुइटेबल फॉर कॉम्पैक्शन बाय ए वाइब्रेटर if it is medium workability, that is plastic.
नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीगेट विच पासेस थ्रू 25 mm ISC when retained in 20 mm C is said to be flaky if its least dimension is कितना हो जाएगी फ्लैकी हो जाए 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू फ्लैकी के लिए 0.6। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगी 13.5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन इज 0.0003। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विद पैसेज ऑफ टाइम। देखिए सीमेंट और कंक्रीट, सीमेंट का स्ट्रेंथ क्या होगा, सीमेंट का स्ट्रेंथ जितना एज बढ़ेगा उतना डिक्रीज होगा, कंक्रीट का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो इट विल इंक्रीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है to obtain a dry powder limestone shell it is burned in a temperature of 1300 and 1400 कौन सी हो जाएगी, it will be 1400 and 1500 degree centigrade temperature for burning for making the concrete नहीं for making the cement sorry। उसके बाद सीमेंट बनाने के लिए 1400 से ऊपर चाहिए टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पाइल ऑफ लेंथ 0, इसका आंसर जो है वो हो जाएगी 0.207 टाइम्स ऑफ एल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट आंसर इज रिंग बीम सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड शियर फोर्स एंड मिड स्पैन इज 0, शियर फोर्स मिड स्पैन इज मैक्सिमम, टॉर्सन इज मिड स्पैन इज 0, मिड स्पैन इज मैक्सिमम सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सो इसका जो आंसर है वो हो जाएगी 1 and 3 दैट इज शियर फोर्स एट द मिड स्पैन इज 0 एंड टॉर्सन एट द मिड स्पैन इज ऑल्सो 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द स्टोरी हाइट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ RCC wall the percentage increase in length is percentage increase in length ना strength कितना हो जाएगी, अगर सेम है दोनों इक्वल then it will be 10। ठीक है, आंसर will be option number B। नेक्स्ट क्वेश्चन is z by x minus of z by z minus of y, so answer will be this one। नेक्स्ट क्वेश्चन है relationship is मॉडुलस ऑफ रप्चर इज द हाईएस्ट, देन सबसे हाईएस्ट है मॉडुलस ऑफ रप्चर, देन स्प्लिट, उसके बाद डायरेक्ट टेंजाइल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एक्सपेंशन जॉइंट इज 45। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज्ड फॉर कंक्रीट ग्रेड M400 मतलब M40 के लिए यूज नहीं किया जाता। इन स्पेरिकल डोम सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोडेड क्राउन और यूनिफॉर्मली द मेरिडियनल फोर्सेस इज हुप स्ट्रेसेस जो है वो टेंजाइल होते हैं लेकिन मेरिडियनल फोर्सेस जो है वो कंप्रेसिव होते हैं। ठीक है, इट विल बी कंप्रेसिव इन नेचर। नेक्स्ट है द डेप्थ ऑफ फुटिंग फॉर एन आइसोलेटेड कॉलम इज गवर्नड बाय पंचिंग शियर, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्सेस। द ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बेयरिंग RCC वॉल इज 100 mm। ठीक है, मिनिमम। उसके बाद नेक्स्ट है टू द इफेक्ट ऑफ एडिंग कैल्शियम क्लोराइड इन कंक्रीट इज टू इंक्रीज थिकनेस एंड टू डिक्रीज सेटिंग टाइम। कैल्शियम क्लोराइड ऐड करेंगे श्रिंकेज इंक्रीज हो जाएगी लेकिन सेटिंग टाइम डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ कंक्रीट यूज, क्वालिटी के लिए हमें यूज करना है कौन सी यूज करेंगे, विल बी यूजिंग द ग्रेडेड एग्रीगेट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन परमिसेबल बॉन्ड स्ट्रेस इन द केस ऑफ डिफॉर्म्ड बार एंड डेट ऑफ द प्लेन बार इज 40%, 40%। Next question at the rock which is not calcareous is laterite. Laterite is the one type of rock which is argillaceous. The T-shaped retaining wall consists of the 3 cantilevers। उसके बाद next question है the fineness modulus of fine aggregate is in the range of 2 to 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर कास्टिंग एंड ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के बाद क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी ड्यूरिंग द इरेक्शन के लिए 0.707 टाइम्स ऑफ एल।
उसके बाद लोड फैक्टर फॉर लाइव लोड एंड डेड लोड. फॉर लाइव लोड इट इज 2.2 and फॉर डेड लोड इट इज 1.5. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज बर्न एट ए टेम्परेचर ऑफ, it will be temperature will be 1400 degree. Next है in case of hand mixing the extra cement to be added, the extra cement which we will going to add is 10%, 10% एक्स्ट्रा करेंगे. उसके बाद इसमें आंसर जो है वो हो जाएगी 1875 माइनस ऑफ 1500 डिवाइडेड बाय 1500. तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगी अराउंड 25%. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ voids in cement is approximately 40% is voids. नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट इज 35 kg. उसके बाद द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ मॉड्यूलर रेशियो फॉर रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क इज 40. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ रीइंफोर्सिंग लैम्प एंड द स्लैब इज इन द रेशियो ऑफ 1:8. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है the operation of removing humps and hollows of uniform corrugated is called as screeding, floating, troweling and finishing. SFTF, screeding and troweling. Final operation is troweling and pehla operation is screeding. Next question is the 1% of voids in a concrete mix would reduce its strength by about. सो 1% वॉइड्स के कारण स्ट्रेंथ कितना रिड्यूस हो जाएगी? द स्ट्रेंथ विल बी रिड्यूस्ड बाय 5%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ए 3 cm by 3 meter by 3.5 meter size the minimum overall depth of slab to satisfy vertical deflection is 75 mm. Next question is the most useless aggregate is glassy aggregates. Next question, minimum thickness of the floor in the concrete warehouse is 250 mm, 250 centimeter, 25 centimeter या 250 mm. Next, maximum percentage of reinforcement in the case of slab is limited to, it will be 4%. Next question is according to IS 4 the number of grades of concrete mix is 7. Next question is हमें कैलकुलेट करना होगा that is इसमें जो है आंसर हो जाएगी 50%. कैसे किया जाएगा? 6.8 माइनस ऑफ 5.4 बाई 5.4 माइनस ऑफ 2.6 इंटू 100% करेंगे तो 0.5 या 50% आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ RCC स्लैब बीम्स एंड वॉल्स एटसेट्रा द ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इज 1:2:4. इसका मतलब है 1:2:4 इज M15 हम लोग M15 कंक्रीट यूज करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग द फ्लोर इज ट्रैवलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कंक्रीट बाय पाम इज डन एट ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर. उसके बाद द टेम्परेचर फॉर मेच्योरिटी बाय प्लोमेन इज -11.7 डिग्री सेंटीग्रेड. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है the bulk density of aggregate is generally expressed as bulk density mass by volume, that is kg per liter. उसके बाद for concreting tunnel lining transportation of concrete is done by the help of pumps. Next question is the ratio of the length to breadth of a wooden floor is 7.5. उसके बाद next question है percentage of puzzling material containing clay up to 80% used for the construction manufacturing of puzzle cement is, the percentage of puzzling material will be 30%. Next question, the grade of concrete not recommended by IS 456 is M50. उसके बाद बस इतना ही क्वेश्चंस था आज की वीडियो में. टोटल मैंने आप लोगों को 110 क्वेश्चंस बता दिया. ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सीधा इन आंसर्स को याद करना है. ठीक है, बाय हार्ट करना है और इसी तरीके का क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है. ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.